ये आप देख सकते हैं इस वक्त मैं होस्ले की कैंडल्स की रिव्यू करने वाली हूँ। होस्ले फ्रेश बैम्बू फ्रेग्रेंस जार विथ सेंटेड टी लाइट। मैंने ये ऑर्डर किया था बट उन्होंने मुझे क्या भेजा है वो आप देखिए। उन्होंने मुझे भेजा है होस्ले का रस्टिक सैंडलवुड फ्लेवर, प्लस इसमें मुझे कोई डेट्स नहीं दिख रही है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्राइस दिख रही है, एमआरपी वगैरह। एंड दे हैव रिटर्न की बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स। तो हाउ कैन आई नो कि 24 मंथ्स कब ख़त्म होगा, कब है नहीं है। सो मेड इन इंडिया लिख रखा है, कहीं लिख रखा है कि ये यूएस का है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड मैन कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट बेच रहे हैं। पर ठीक है, फ़िलहाल इसकी बात करूँ तो इसकी ना फ्रेगरेंस अच्छी है। अगर बाय एनी चांस आप लोग को भी ये मिलता है तो मैं इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, जो चंदन की, अगर आपने इंसेंस यूज़ की होगी, धूपकाठी जिसे कह सकते हो या फिर अगरबत्ती कह सकते हो, जो भी हो सकता है वो, तो सैंडलवुड की फ्रेगरेंस इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है जार से ही। एंड आई एम लाइकिंग इट। बट मैंने रिप्लेसमेंट ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे टी लाइट के साथ चाहिए था कैंडल, एंड मैंने टी लाइट के लिए ही स्पेसिफिकली ये मंगवाई थी सेट हौसले की, और वो भी बैम्बू फ्लेवर में। तो जब मुझे वो रिप्लेसमेंट मिलेगा, ये वो लेके जाएंगे, तो उसकी भी आगे आपको अपडेट मिलेगी वीडियो के। फ्रेग्रेंस नो डाउट इसकी बहुत अमेजिंग है, और अगर आप कैंडल की रिव्यू देखना चाहते हो तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो। उसमें मैंने कैंडल की रिकमेंडेशन दी थी एकम ब्रांड से। एंड इस वीडियो के आगे मैं आपको एकम के एम्प्टीज़, जो कैंडल एम्प्टीज़ है, वो मैं दिखाऊंगी। तो बने रहिए। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास हौसले का फ्रेश बैम्बू वाला रिटर्न आ चुका है, जो कि मैंने रीऑर्डर कह सकते हैं, रिटर्न किया था क्योंकि उन्होंने मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा था, जो कि वीडियो के पहले मैंने दिखाया है। नाउ दे हैव सेंडेड मी दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विच आई हैव ऑर्डर्ड, एंड आई एम हाईली satisfied man about the cold sniff of this particular candle, which is fresh bamboo. And honestly, this smell really great, but sometimes I'm reminded of, like, lemon flavored kala hit. I don't know why, but actually it does have that lemony fragrance. That's why, or maybe those spray contain that freshening agent which makes it smell like that. Um, Okay, fresh bamboo is used for like creating that serene environment, clean, fresh feeling. It can repel that pesky insects which we don't like. So you can burn it around your maybe wherever you are sitting, having a nice cup of coffee, tea, or in general just having in snacks around balcony. You can place it there to create that vibe which you will love. So it is really good candle, and I got it around maybe 239. Yes, 239. And since I have ordered it on cash on delivery, that's why I have to pay extra 5 rupees. And these tea light candles are also very nice, and I have checked everything when I received. Actually, I am making this review very late, sorry for that. And so as you can see, these are the tea lights. This is how it is looking, and it is also smelling really nice. And yes, you can buy these sets if you wish to try. There was no review while I was purchasing this. These are really good if you in general love that scented candles, that aesthetic of everything. And one more thing that I want to talk about is that there was little crack on this jar. That's why I have painted it with this is not focusing really well.
Yes, you can see there is little crack here. So I don't know why that this type of things Hosley have done. First they have sent a wrong item, then I have to wait again. Anyway, so I have just used some DIY hacks, and you can buy this if you love Hosley products. Hosley are affordable. This came securely wrapped in this bubble wrap, as you can see. And let's move to another product. Sorry, my earphone, which I have used actually. Scented candles from Ecom brand. You can see the jars I have kept here. I have repurposed all of them. And let's talk about this. This is cranberry, completely used, and this is soft cotton, which I have repurposed also. And they come in these types of tags, whatever flavor they were. So let's talk about it in details. नूडल्स की कितनी सारी एंटीज़ हैं। मैंने इसके शॉर्ट्स बनाए थे, बट इसके बारे में नहीं बताए थे आपको कि ये कैसे हैं इंडिविजुअली। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल रिव्यूज़। एंड मैंने ना इन कैंडल्स के एम्प्टीज़ को रखे हैं फॉर पर्पज़ ऑफ रिव्यू ओनली। एंड यू कैन सी देयर इज़ बॉक्स ऑल्सो, and their levels are also here. And I am using this for DIY things, तो इसके colors and all that आप उसको इग्नोर करिए। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कैंडल्स। तो फर्स्ट यहाँ पे फ्रूट स्प्लैश है, जो कि इन कुकी जार्स में आई थी। एंड वेनिला, सेलॉन सिनेमन एंड लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास की खुशबू ना बिल्कुल एक फ़्रेश लेमन ग्रास की तरह है, बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल जब आप जलाओगे लेमन ग्रास की कैंडल बाय एकम ब्रांड। इसकी स्मेल ना एविडेंट होगी आपके पूरे किंग साइज़ रूम में। इवन इफ़ दिस कैंडल लुक्स सो स्मॉल, बट द बर्न टाइम ऑल्सो इज़ अराउंड 30 hours. I have used completely their wax by scooping out in tea light also, क्योंकि मुझे इसके कैंडल्स इतने पसंद आए थे। जब फर्स्ट इन्होंने लॉन्च किया था तो वो पैराफिन वैक्स में था, और बाद में इन्होंने सोए वैक्स में शिफ्ट कर दिया था। मैंने सोए वैक्स के 2 रेंज खरीदे थे, क्रैनबेरी एंड फ्रेश कॉटन। मैंने सॉफ्ट कॉटन कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इसकी स्मेल एविडेंट रहेगी, आप जो भी स्मेल लोगे। सिनेमन की स्मेल बिल्कुल सिनेमन की तरह थी, बहुत अच्छी लगती है विंटर के टाइम पे ये। एंड लेमन ग्रास इन समर सीज़न, विंटर सीज़न, एनी सीज़न व्हेन यू वांट योर टी रूम टू स्मेल लाइक अ क्लीन, फ्रेश, completely free of any insects and all that, lemongrass is really good to use around your house for insect repelling properties. एंड फ्रूट स्प्लैश की बात करूँ तो फ्रूट स्प्लैश में ना एकदम हल्की सी फ्रूटी नोट्स आती है, पपाया, मैंगो। मैंगो की मुझे इसमें थोड़ी ज़्यादा आती है, और पाइनएप्पल, एवरी दैट ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फ्रेगरेंस। जैसा इसमें जो ये फ़ोटो देख सकते हो आप, ये जो फ़ोटो फोकस क्यों नहीं कर रही है, तो ये जो फ़ोटोज़ में आप जितने फ्रूट्स देख पा रहे होंगे, तो ये सारे फ्रूट्स की तरह फ्रूट स्प्लैश स्मेल करती है। एंड मैं बहुत पसंद करती हूँ ये फ्रूट स्प्लैश फ्लेवर को। आपको भी अगर फ्रूटी फ्रेगरेंस पसंद है तो ट्राई करिएगा, और लेमन ग्रास भी बहुत अच्छी लगी। एंड वेनिला की बात करूँ ना, तो वेनिला थोड़ी मुझे वेनिला आइसक्रीम टाइप ऑफ लगती है एकदम। वेनिला आइसक्रीम को अगर आप अपने रूम के आसपास स्मेल करोगे तो आपको जिस टाइप की वेनिला में एक फ्रेगरेंस आती है, ये बिल्कुल वैसी थी। तो I don't like this, I didn't like this smell that much, मुझे नहीं पसंद आई। इवन सिनेमन एट अ टाइम, दिस सिनेमन फ्लेवर स्मेल सो स्ट्रॉन्ग दैट आई हैव टू पुट ऑफ द कैंडल। इनकी जो स्मेल है बहुत पोटेंट है, तो ये मत समझिएगा कि एकम ब्रांड है उतना महंगा नहीं है तो इसकी स्मेल उतनी अच्छी नहीं होगी। इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। और मैंने कुछ शॉट ग्लास भी ख़रीदे थे, तो शॉट ग्लास और सबकी मैं एक फ़ोटो आपको इसमें दिखा दूँगी कि कैसे लगते थे वो कैंडल्स दिखने में। तो शॉट ग्लास में मेरे पास थे स्वीट पी, मैंड्रिन, टेम्पल ब्लूम,
टेम्पल ब्लूम इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी मंदिर में बैठे हो। अगर आप मंदिर जाते हैं, जो भी बहुत पॉपुलर मंदिर हैं, तो वहाँ पे ना एक खुशबू होती है, एक एसेंस होता है, हवन, फ्रूट्स, इंसेंस, धूप, बाती, हर चीज़ की एक जो एक खुशबू मंदिर के आसपास होती है ना, तो टेम्पल ब्लूम चाइल्डहुड, आपको चाइल्डहुड याद दिला देगा। बस मैं इतना कह सकती हूँ। प्लीज़ ट्राई दैट इफ़ यू फाइंड दैट टेम्पल ब्लूम फ्लेवर फ्रॉम एकम कैंडल्स, डू ट्राई दैट आउट। एंड क्रैनबेरी की बात करते हैं। क्रैनबेरी ना एकदम जेली काइंड ऑफ फ्लेवर लगती है, जैसे फ्रूट्स की जेली जैम होती है, ये उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है। क्रैनबेरी एज अ फ्रूट आई हैवेंट कंज्यूम्ड इट, सो मैं बता नहीं पाऊँगी। और जो ये वाली आप जार देख सकते हो, ऑनेस्टली ये जो जार अभी जिस रंग की दिख रही है उस रंग की नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट इस टाइप के ग्लास टाइप की थी। मैंने इसको डीआईवाई किया है। तो ये रोज़ फ्लेवर था। और ये कॉटन। फ़र्क एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो फ्रॉस्टी पैकेजिंग में अब वो लोग बेच रहे हैं अपने कैंडल्स, वो वाले कैंडल अब सोए वैक्स के हैं और ये वाले पैराफिन वैक्स के थे। बर्न टाइम ऑफ सोए वैक्स हैज़ प्रोबेबली मोर बर्न टाइम देन पैराफिन वैक्स, तो एंड क्वालिटी हैव ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ बिट। तो थोड़े महंगे हैं एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट सीइंग एनी हेक्सा जार पैकेजिंग ऑन देयर वेबसाइट एनी मोर। एंड शॉर्ट ग्लास कैंडल्स में मैंने स्वीट भी ऑर्डर किया, लाइम, मैंडरिन लाइम, आई डोंट रिमेंबर, बट लाइम फ्लेवर एंड टेम्पल ब्लूम, बस 3। और मैंने 1 या 2 ग्लास इनके मुझसे फूट गए वो जलते जलते ही। मैंने उसको रीयूज़ किया था फॉर डीआईवाई कैंडल, तो वो जल गए। एंड ये आप देख सकते हैं मैच बॉक्स है बाय साइकिल ब्रांड। तो साइकिल ब्रांड की मैंने कुछ अगरबत्ती परचेज़ की है, मैं इसकी भी रिव्यू करने वाली हूँ जल्द ही। प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो आप ना एकम ब्रांड की कैंडल्स एस्थेटिक पर्पस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अफोर्डेबल, इंडियन ब्रांड एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट। हाँ, बस इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। पहले ये इस जार में जब आती थी तो 150 के रेंज में आपको एक कैंडल मिल जाती थी एंड फ्री डिलीवरी ऑन 500 रुपीज़ ऑर्डर। तो मैंने काफ़ी ऑर्डर किया था उस टाइम पे एंड मुझे बहुत पसंद आए एकम ब्रांड के। मैंने इसके लैवेंडर, स्ट्रॉबेरी भी यूज़ किए हैं एंड मैंने आइरिस के कैंडल भी यूज़ किए हैं, उनके भी फ्रेग्रेंस अच्छी है। अब पर मेरा सबसे फेवरेट एकम ब्रांड रहा है फॉर नॉस्टैल्जिक रीज़न। मुझे एकम फर्स्ट कैंडल मिले थे जब मैंने कैंडल सर्च करना स्टार्ट किया था। एंड आई एम लवर ऑफ गुड फ्रेग्रेंस एंड in general aesthetic things, and I will keep these things as my showpiece. So you can buy the Ekam brand candles, they are really good. And this was fresh cotton. Fresh cotton smelled really strong, man. This smelled in whole room. The smell was evident around whole room एंड काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी भी। जैसे कि आपने अगर कोई फ्रेश वॉश्ड क्लोथ्स को हैंग अराउंड किया हुआ है अपने घर में, तो ये उसकी स्मेल बिल्कुल ऐसी लगती है। फ्रेश कॉटन जैसा इसका नाम है, एकदम वॉश्ड कपड़ों की एक खुशबू होती है, इसकी स्मेल वैसी थी। थोड़ी सी मुझे एपरल परफ्यूम काइंड ऑफ लगती थी इसकी स्मेल। बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको 1 से 2 घंटा भी हार्डली जलाती थी तो भी इसकी स्मेल रूम में रहती थी। तो देयर स्मेल आर रियली एविडेंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो you can go for it without any doubts. They are really good candles. एंड आपको मैं इमेजेस भी दे दूँगी इस वीडियो के साथ साथ कि जब मैंने परचेज़ की थी तो कैसी दिखती थी ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।